واشنگٹن اب چین کے ساتھ براہ راست مفاہمت کو ترجیح دے رہا ہے، جس سے ایشیا میں طاقت کے توازن کا پورا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ انڈو پیسیفک صرف ایک جغرافیائی اصطلاح نہیں تھی، بلکہ یہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے میں امریکہ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک حکمت عملی کا نام تھا۔ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کمزور پڑنے کے ساتھ ہی انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا پر مشتمل کوآڈ اتحاد بھی اپنی اصل اہمیت کھوتا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے انڈو پیسیفک میں سے انڈو کا خاتمہ ایک لفظ کی تبدیلی نہیں، بلکہ امریکہ کی ایشیا پالیسی میں ممکنہ بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ انڈو پیسیفک کی کہانی دراصل 21ویں صدی میں عالمی طاقت کے نئے مرکز چین کے عروج اور امریکہ کی بدلتی ہوئی حکمت عملی کی کہانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ پینٹاگون کی جانب سے حال ہی میں انڈو پیسیفک کی اصطلاح میں سے انڈو کا حذف کرنے کا فیصلہ بظاہر ایک معمولی انتظامی تبدیلی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کے دورے حکومت کے سب سے اہم اور دور رس سرکاری فیصلوں میں سے ایک ثابت ہو۔ سرکاری طور پر دیکھا جائے تو تقریباً کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ نئے نام سے موسوم کیا گیا یو ایس پیسیفک کمانڈ اب بھی وہی جغرافیائی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، جن کا دائرہ امریکہ کے مغربی ساحل سے لے کر انڈیا کی مغربی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اسٹریٹجک معاملات میں صرف پالیسیاں ہی نہیں بلکہ علامتیں اور اصطلاحات بھی اہم پیغام دیتی ہیں۔ جغرافیائی سیاست میں نام محض رسمی یا نمائشی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، اتحادوں کی ڈائریکشن متعین کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکومتیں دنیا کو کس زاویے سے دیکھتی ہیں۔ صرف ایک لفظ حذف کر کے واشنگٹن نے ایک اہم سوال کو جنم دے دیا ہے: کیا امریکہ اس اسٹریٹجک ویژن سے دستبردار ہو رہا ہے جو گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے چین کے حوالے سے اس کی پالیسی کی بنیاد رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انڈو پیسیفک کا تصور محض جغرافیائی اصطلاح نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جامع اسٹریٹجک نظریہ تھا۔ اس نظریے کی بنیاد اس خیال پر تھی کہ عالمی طاقت کا مرکز تبدیل ہو چکا ہے اور بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن اور بحر ہند یعنی انڈین اوشن اب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اسٹریٹجک خطے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ دنیا کی مصروف ترین بحری گزرگاہیں، تیزی سے ترقی کرتی معیشتیں، بڑے صنعتی مراکز اور حساس ترین عسکری تنازعات اب ایک دوسرے سے الگ نہیں رہے۔ اس تصور کے فکری معمار جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ بحر الکاہل اور بحر ہند دراصل دو سمندروں کا سنگم ہے، اس لیے خطے میں قانون پر مبنی ریجنل آرڈر کے تحفظ کے لیے سمندری جمہوری ممالک کا اتحاد ناگزیر ہے۔ ان کے پیش کردہ فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک کے تصور کا مقصد چین کو تنہا کرنا نہیں تھا، بلکہ اس امر کو یقینی بنانا تھا کہ ایشیا میں کوئی ایک طاقت مکمل غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ نے بھی اسی ویژن کو اپنی خارجہ اور دفاعی اسٹریٹجی کا بنیادی حصہ بنا لیا۔ صدر ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک چین کے حوالے سے امریکی اسٹریٹجی کا مرکزی ستون بن گیا۔ اسی دور میں کوآڈ، جس میں امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں، اس کو دوبارہ فعال کیا گیا۔ امریکہ نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر چین کو اپنا بنیادی اسٹریٹجک حریف قرار دیا۔ اس نئی اسٹریٹجی میں انڈیا کی اہمیت غیر معمولی حد تک بڑھ گئی، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے وہ چین کے مغربی محاذ پر واقع ہے، جبکہ جاپان مشرقی محاذ پر موجود ہے۔ اس طرح یہ دونوں ممالک دو سمندروں پر محیط ایک وسیع اسٹریٹجک اتحاد کے دو اہم ستون بن گئے، جس کا مقصد خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے بڑی حد تک اسی اسٹریٹجی کو برقرار رکھا، اگرچہ یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں نے بارہا امریکہ کی توجہ اور اس کے فوجی وسائل کو دوسری سمت موڑ دیا۔
लेकिन अमेरिकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी मफरूजा तब्दील नहीं हुआ था। 21वीं सदी में अमेरिका के लिए असल जुग्राफियाई और सियासी चैलेंज रूस नहीं बल्कि चीन है। तहम अब यह बुनियादी मफरूजा भी पहले की निस्बत गैर यकीनी दिखाई देने लगा है। पेंटागन की जानिब से नाम में की गई तब्दीली दरअसल एक वसी तर स्ट्रेटेजिक तब्दीली की सिर्फ एक अलामत है। सदर ट्रंप ने बतदरीज चीन के बारे में अपना मौक़िफ़ नरम किया है और स्ट्रेटेजिक मुकाबला आराई के बजाय मुआहिदों और सौदेबाजी को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी है। ट्रंप इंतजामिया ने क्वाड इत्तेहाद की अहमियत भी पहले के मुकाबले में कम कर दी है। ट्रंप की जानिब से बार बार G2 यानी अमेरिका और चीन पर मुश्तमिल दो बड़ी ताकतों के आलमी इंतजामी किरदार का जिक्र इस बात की निशानदेही करता है कि वो आलमी सियासत को एक ऐसे जाविये से देख रहे हैं जो वाशिंगटन की गुज़िश्ता कई बरसों की इत्तेहादी ममालिक पर मबनी स्ट्रेटजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिका की असल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इस तसव्वुर पर कायम थी कि एशिया में चीन की बालादस्ती को सिर्फ इसी सूरत रोका जा सकता है जब अमेरिका अपने काबिल एतमाद इत्तेहादियों और शिराकतदारों के एक मजबूत नेटवर्क को मजीद ताकतवर बनाए। इसके बरक्स G2 का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ सोच पेश करता है। इसमें चीन का तवाजुन कायम रखने के लिए इत्तेहादी ममालिक का इत्तेहाद तश्कील देने के बजाय वाशिंगटन खुद बीजिंग के साथ बरह रास्त मफाहमत और समझौतों के जरिए आलमी इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए ये फर्क मामूली नहीं बल्कि इंतहाई अहम है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे ममालिक ने गुज़िश्ता बरसों में इस यकीन के तहत ज्यादा स्ट्रेटेजिक खतरात मोल लिए कि अमेरिका एशिया में ताकत का तवाजुन अपने हक में बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। इसी एतमाद की बुनियाद पर उन ममालिक ने सियासी, सिफारती और अस्करी सतह पर भारी सरमायाकारी की और मुश्तरका हिकमत अमली का हिस्सा बने। लेकिन अगर वाशिंगटन बतदरीज चीन को एक ऐसे हरीफ के बजाय जिसका तवाजुन कायम रखना जरूरी है को मैनेजर ग्लोबल ऑर्डर समझने लगे तो वो तमाम बुनियादी मफरूजे और इत्तेहाद जिन पर गुज़िश्ता एक दहाई की अमरीकी एशियाई स्ट्रेटजी उस्तवार थी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगेंगे। क्वाड इस बदलती हुई सूरत हाल की एक वाज़ेह मिसाल बन चुका है। इब्तिदा में इस इत्तेहाद का तसव्वुर चीन की बढ़ती हुई तोसी पसंदाना पॉलिसियों का तस्वीराती तवाजुन कायम करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन अब यह इत्तेहाद बतदरीज एक ऐसे फोरम की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है जो गोया अपनी असल मकसदियत ही तलाश कर रहा हो। 2024 के बाद से क्वाड लीडर्स का कोई सरबराही इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। इसके एजेंडे में भी नुमाया तब्दीली आ चुकी है और अब इसकी तवज्जो ज़्यादातर निस्बतन गैर मुतनाज़ मौज़ूआत जैसे सप्लाई चेन्स, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ और बहरी निगरानी जैसे शोबों में ताउन पर मरकूज़ है। बिलाशुबा ये अहम इक़दामात हैं, लेकिन किसी जामे और तवीलुल मुद्दती तस्वीराती स्ट्रेटेजिक की बुनियाद नहीं बन सकते। यहाँ एक वाज़ेह तज़ाद सामने आता है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया है। अगर खुद वाशिंगटन बीजिंग के साथ मफाहमत और ताउन की राह अख्तियार कर रहा है तो फिर क्वाड आखिर किस चीज़ को रोकने या बाज रखने के लिए वजूद में है। तारीख गवाह है कि इत्तेहाद अक्सर अचानक नहीं टूटते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खो देते हैं। आज क्वाड को भी उसी खतरे का सामना है। इसके असरात सिर्फ एक सिफारती इत्तेहाद तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इससे कहीं ज्यादा वसी होंगे। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एक ऐसी जोग्राफियाई और सियासी हकीकत को तस्लीम करती थी जो आज भी तब्दील नहीं हुई। अमेरिका अकेले एशिया में ताकत का मतवाजन सिस्टम बरकरार नहीं रख सकता। इस मकसद के लिए इसे ऐसे मजबूत इत्तेहादी दरकार हैं जो एशियाई बर्रे आज़म के मशरकी और मगरबी दोनों किनारों पर मौजूद हों। जापान आज भी मशरकी एशिया के दिफाई सिस्टम में नागुज़ीर हैसियत रखता है। इसी तरह इंडिया अपनी जोग्राफियाई वुसअत, अस्करी सलाहियत और बहरे हिंद पर अपनी अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बदौलत एशिया की वाहिद ताकत का तसव्वुर रखता है जो चीन पर मगरबी सिमत में मौसर स्ट्रेटेजिक दबाव डालने की सलाहियत रखती। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया जनूबी बहरुल काहिल में अमेरिका के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक सतून की हैसियत रखता है। इसलिए वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कोई भी दो तरफा मफाहमत इस वसी और पेचीदा स्ट्रेटेजिक ढांचे का मुतबादिल नहीं बन सकती।
दूसरी जानिब चीन गालिबन इंडो पैसिफिक के तसव्वुर के खामोशी से खत्म होने पर मुतमईन होगा, क्योंकि बीजिंग तवील अरसे से इस तसव्वुर को अपने गिर्द घेरा तंग करने की एक स्ट्रेटजी समझता रहा है। चीन के नजदीक ये एक ऐसा मंसूबा था जो मगरबी बहरुल काहिल से बहरे हिंद तक फैले हुए जमहूरी ममालिक के इत्तेहाद के जरिए इसके जोग्राफियाई और सियासी अज़ाइम को महदूद करने के लिए तश्कील दिया गया था। इंडो की इस्तिलाह को हज़फ करने से इस वसी स्ट्रेटेजिक तसव्वुर का दायरा सिमट जाता है। अलामती तौर पर यह इकदाम वाशिंगटन को बीजिंग के इस नुक्ता नज़र के ज्यादा करीब ले जाता है, जिसके मुताबिक एशिया को बुनियादी तौर पर बहरुल काहिल का एक खित्ता समझा जाना चाहिए, जहां इलाकाई सियासत का महवर अमेरिका और चीन के बाहमी ताल्लुकात हों, ना कि एक वसी कसीरुल मुल्की इत्तेहाद। मुमकिन है कि पेंटागन की जानिब से नाम में की गई यह तब्दीली महज इस इस्तिलाह की तरफ वापसी हो जिसे बीजिंग तवील अरसे से तरजीह देता रहा है। लेकिन बैनुल अक़वामी सियासत में अल्फाज और इस्तिलाहात गैर मामूली अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी के मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होने से पहले ही हुकूमतों की तरजीहात और डायरेक्शन का इशारा दे देते हैं। गुज़िश्ता तकरीबन एक दहाई तक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का तसव्वुर चीन के अरूज के मुकाबले में अमेरिका की बुनियादी स्ट्रेटजी समझा जाता रहा। इस विजन की बुनियाद मजबूत इलाकाई इत्तेहादों की तश्कील, मौसर दिफाई तवाज़ुन यानी डेटरेंस को मुस्तहकम करने और पूरे एशिया में ताकत का ऐसा तवाज़ुन बरकरार रखने पर थी जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के हक में हो। लेकिन अगर खामोशी के साथ इस बुनियादी तसव्वुर की जगह एक ऐसे नए आलमी नज़म ने लेना शुरू कर दी है जिसमें अमेरिका और चीन मुश्तरका तौर पर आलमी मामलात का इंतज़ाम करें, तो मुस्तकबिल के मौर्रिख शायद इस छोटे से लफ्ज़ इंडो को हज़फ किए जाने को महज एक इंतज़ामी तब्दीली नहीं बल्कि उस तारीखी लम्हे के तौर पर याद रखेंगे जब अमेरिका ने इत्तेहादी क़यादत की हिकमत अमली तर्क करके बड़ी ताकतों के बाहमी इंतज़ाम की पॉलिसी इख्तियार करना शुरू की। अगर वाकई ऐसा होता है तो इसके नताइज नहायत गहरे और दूर रस होंगे। इससे न सिर्फ दुनिया के सबसे अहम जोग्राफियाई और सियासी खित्ते यानी एशिया की स्ट्रेटेजिक साख्त तब्दील हो जाएगी, बल्कि वो बैनुल अक़वामी सिस्टम भी नई शक्ल इख्तियार करेगा जिसकी तश्कील में खुद अमेरिका ने गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान मरकजी किरदार अदा किया था। अगर तो अमेरिका और चीन की बराह रास्त दुश्मनी खत्म हो जाती है तो फिर ग्लोबल साउथ के दीगर ममालिक का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो अहम तरीन सवाल है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि चाइना अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया का इंतज़ाम संभालने का फैसला कर लेते हैं तो ये दो बड़े ताकतवरों के दरमियान दुनिया की बंदरबाट होगी। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे फ्रांस और बरतानिया ने दूसरी आलमी जंग से पहले दुनिया की बंदरबाट कर रही थी। अफ्रीका फ्रांस के पास था और एशियाई ममालिक ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट वो बरतानिया के कब्ज़े में था। क्या ये कब्ज़े की रोदाद दोबारा से लिखी जा रही है या पसे पर्दा कुछ और चल रहा है? कमेंट में अपना तबसरा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।